Good morning, students. Today we will start our next chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. Now, students, what is the meaning of the word pure nowadays? प्योर का मतलब ये है कि एक जैसे सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है. ओके, फॉर एग्जांपल प्योर सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क. ऑलराइट, ये हम इस सब चीज़ों को हम प्योर कहते हैं. वाई? बिकॉज दे इंश्योर अस कि इसमें कोई भी टाइप की मिलावट उसमें नहीं है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर. ऑलराइट, बट साइंटिफिकली प्योर का मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से बना है. फॉर एग्जांपल, अगर आई एम सेइंग प्योर मिल्क, तो मिल्क में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, कैल्शियम प्रेजेंट होता है. ओके, फैट प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है. तो दैट मीन्स कि ये जो प्योर मिल्क बोल रहे हैं वो साइंटिफिकली इट इज़ नॉट प्योर. वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली फॉर घी, इसमें भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं और ऑल्सो डिफरेंट मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, सो इन सब चीज़ों को वी कैन नॉट से प्योर. सॉल्ट जो है इट इज़ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड. ऑलराइट, इसमें भी दो टाइप्स के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सो एक टाइप के मटेरियल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंसेस आर साइंटिफिकली नॉट प्योर. अंडरस्टूड? नाउ दिस ऑल वी कैन से इट इज़ नथिंग बट impure substance. Scientifically they are impure. Now we will study about mixture. Okay, let's read once. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. What is the meaning of adulteration? कोई भी प्रकार की मिलावट इसमें नहीं है. But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. For a scientist, scientifically ये substances pure नहीं है because it is a mixture of different substances. For example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. In other words, substance is a pure single form of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixtures. Okay. Now, what is a mixture actually? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance which cannot be separated by physical process in its chemical constituents. Okay. अब अगर हमने सॉल्ट और वाटर को दोनों को मिक्स किया है, लेकिन अगर हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है तो व्हाट वी विल डू इज ड्यू टू बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इस चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं. यस, लेकिन सॉल्ट इटसेल्फ जो है वो दो सब्सटेंस से बना है, जैसे सोडियम क्लोराइड. तो क्या हम सोडियम और क्लोराइड दोनों को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं इजीली? नहीं. ठीक है, इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना होगा, तब जाके सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग हो सकते हैं. सिमिलरली शुगर अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single substances. Whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substances. Okay, what is a mixture?
जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस होते हैं वो होता है मिक्सचर. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स? Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. Now let us see this activity. Let us divide the class into groups A, B, C and D. Okay, 4 groups बना लिए हैं. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Group A के पास क्या है? Copper sulfate powder plus water मिक्स किया हुआ. Group B के पास क्या है? 50 ml water and 2 spatula full of copper sulfate powder. ठीक है, यहाँ पे 1 spatula था, यहाँ पे 2 spatula है in a beaker. Group C and D take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. Group C and D क्या करते हैं? copper sulfate, potassium permanganate, ओके, या फिर common salt, इन सबको मिक्स करते हैं, एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं. Now report the observation on the uniformity in color and texture. Groups A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Group A and Group B उन्होंने क्या किया? पानी के अंदर कॉपर सल्फेट डाला है, तो क्या होगा? जो पानी हमें मिलेगा वो क्या होगा? एक जैसे कलर का होगा. यस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. Such mixtures are called homogeneous mixtures. Some of the other examples are salt in water, शुगर इन वाटर. जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या हमें सॉल्ट और वाटर अलग अलग दिखते हैं? नहीं, हमें एक जैसा पूरा पानी दिखता है. वैसे ही शुगर को अगर हम पानी में डालते हैं तो भी हमें पूरा एक जैसा दिखता है. अंडरस्टूड? कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स. दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट. दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन. नाउ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए ने एक ही स्पैटुला डाला था, 1 स्पून डाला था. ग्रुप बी ने 2 स्पून डाले थे. ओके, दैट्स वाई दोनों का होमोजेनस मिक्सचर ही होगा. मिक्सचर जो हमें मिलेगा वो एक जैसा. दैट मीन्स पूरा का पूरा मिक्सचर होमोजेनस होगा, लेकिन दोनों का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा. वाई? बिकॉज एक में हमने 1 स्पून डाला है और दूसरे में हमने 2 स्पून डाले हैं. दैट्स वाई. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं, अगर ये हमें कॉपर सल्फेट तो घर पे नहीं होता है, लेकिन अगर हम टर्मरिक, अगर एक ग्लास में अगर हमने टर्मरिक 1 पिंच डाली और दूसरे ग्लास में हमने 5 स्पून डाले, ठीक है, तो क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर ही हमें मिलेगा, पूरा येलो पानी ही मिलेगा, लेकिन एक ग्लास में हमें लाइट येलो मिलेगा और दूसरे ग्लास में हमें डार्क येलो मिलेगा. ऑलराइट. ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स. Mixtures of sodium chloride and ion fillings, salt and sulfur, oil and water are examples of heterogeneous mixture. Best example of heterogeneous mixture is oil and water. जब हम ऑयल को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ऑयल और वाटर दोनों हमें अलग अलग दिखते हैं. ओके. Next activity is, let us again divide the class into 4 groups. Distribute the following samples. Few crystals of copper sulfate to group A, 1 spatula full of copper sulfate, chalk powder and few drops of milk or ink to group D. मतलब पहले वाले ग्रुप ने कॉपर सल्फेट लिया है, दूसरे वाले ग्रुप में कॉपर सल्फेट लिया है बट ज़्यादा लिया है, तीसरे ग्रुप में चॉक पाउडर लिया है एंड चौथे वाले ग्रुप में few drops of milk और ink लिया है. Now each group should add the given sample in water and stir properly. अब क्या करना है? हर एक को जिनके पास जो सैम्पल्स हैं वो डालना है पानी में और उसको मिक्स करना है. Now are the particles in the mixture visible? Direct a beam of light through a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? अब ग्लास में अगर हमने ये मिक्सचर्स को डाला और एक साइड से अगर हमने टॉर्च जला रहे हैं, दूसरे साइड से अगर हम देखते हैं कि क्या ये बीम ऑफ लाइट विजिबल है या नहीं, तो क्या होगा कि leave the mixtures undisturbed for a few minutes. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? फिल्टर करना है मिक्सचर को. Discuss the results. Now group A and B have got a solution, group C has got suspension and group D has got colloidal solution. Now students, group A जो है, ग्रुप A और B दोनों ने कॉपर सल्फेट डाला था जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया है. ठीक है, हमें एक जैसा सोल्यूशन मिला है.
थिंग इतना होगा कि इसका कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर डिफरेंट होगा, लेकिन हमें मिला है एक जैसा सोल्यूशन। ऑलराइट, जब हम चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर जो है वो पानी के अंदर सेटल हो जाता है। तो वो हो गया हमारा सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, ओके, वो डिज़ोल्व नहीं हुए। यहाँ पे मिल्क जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन ये जो सोल्यूशन हमें एक जैसा मिलता है लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम कोलाइडल सोल्यूशन। हमने देखा होगा कि जब हम दूध के अंदर पानी डालते हैं या पानी के अंदर दूध डालेंगे तो दूध जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन वो एक जैसा उसके साथ मिक्स अप हो जाता है। अंडरस्टूड? हमें उसको वाइटिश क्लाउडी कलर दिखता है जब हम पानी के अंदर दूध डालते हैं तब। दैट मीन्स वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। ओके।